Khan will visit Washington DC and hold a meeting with President Trump on 22nd July. وائٹ ہاؤس نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کی تصدیق کر دی. صدر ٹرمپ وزیر اعظم عمران خان کا 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس آمد پر استقبال کریں گے. پاک امریکہ قیادت میں انسداد دہشت گردی، دفاع، توانائی اور تجارت کے شعبوں پر بات ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میں ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کو متفقہ طور پر چیئرمین سینٹ لانے پر تبادلہ خیال. ملکی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت. بلاول بھٹو نے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ناگزیر قرار دے دی. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں پیش رفت. نیب راولپنڈی کی 8 رکنی ٹیم کا کراچی میں چھاپا. سابق صدر سندھ بینک طارق احسن، ممبر سندھ بینک بلال شیخ گرفتار. سیونٹ بینک کے صدر سید ندیم الطاف کو بھی حراست میں لے لیا گیا. یہ سارا ان کا مقصد ایک ہے. 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں، NRO، یہ سننا چاہتے ہیں. اور میں یہ کبھی 3 لفظ اس لیے نہیں کہوں گا، ایک تو میں اللہ کو جواب دوں، دوسرا میں اس قوم سے غداری کروں گا. پہلے دن سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. یہ لوگ NRO چاہتے ہیں. NRO دے کر قوم سے غداری نہیں کروں گا. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا. کہا کرپشن اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کو جب تک سزائیں نہیں دیں گے ملک کا کوئی مستقبل نہیں. سندھ میں گورنر راج کی افواہوں کو مسترد کر دیا. وزیر اعظم کا ہر وعدہ اور دعویٰ جھوٹا نکلا. عوام دشمن بجٹ میں ایک نوکری بھی نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی للکار. کہا جیل بھیج کر ڈرایا نہیں جا سکتا. جو سمجھتے ہیں پارٹی ختم ہو گئی وہ نہیں جانتے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. مہنگائی کے خلاف 12 جولائی کو سکھر میں دھرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کی گورنر ہاؤس کراچی میں تاجروں سے ملاقات بے نتیجہ ختم. خرید و فروخت پر شناختی کارڈ کی شرط ختم کرنے سے بھی انکار کر دیا. کہا ملکی معیشت پرانے طریقے پر نہیں چلائی جا سکتی. تاجروں کو جمعے کو اسلام آباد بلا لیا. ملک و قوم کے مفاد کی بات پر کوئی اختلافات نہیں. وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. رہنما نون لیگ نثار احمد کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو. رہنما PTI نصرت پٹھان نے کہا اپوزیشن کے اعمال سے نہیں لگتا کہ حکومت کو مضبوط کرے گی. پرسن مرید عباس کو آبائی علاقے پیپلا میں سپرد خاک کر دیا گیا. مرید عباس کو کراچی میں قتل کیا گیا تھا. ملزم عاطف کا اعتراف جرم. بلیک میلنگ سے تنگ آ کر دونوں کو قتل کیا. ملزم کا پولیس کو بیان. لاہور کے پولیس تھانے میں زیادتی کے ملزم کی مبینہ خودکشی. ملزم نے خود کو پھانسی لگا لی. پولیس کا الزام ورثہ کا احتجاج حوالات میں ہلاکت کا ذمہ دار پولیس کو ٹھہرا دیا. ملزم نے خودکشی کی یا قتل ہوا، حوالات میں لگے CCTV کیمروں سے بھی کوئی نہ دیکھ سکا. مرید عباس کے قتل سے پہلے اور بعد کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے جس میں ملزم کو پستول سمیت دیکھا جا سکتا ہے. واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کے لیے 5 رکنی تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے. ہاتھ میں پستول لیے دروازے سے داخل ہوتا یہ شخص عاطف زمان ہے. ملزم نے اوپر جا کر مرید عباس کو گولیاں ماری، جس کے بعد اسے واپس بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے. آدھے گھنٹے بعد لفٹ میں مرید کی اہلیہ کسی شخص کے ساتھ زخمی شوہر کو لے کر باہر نکلتی ہیں، مگر مرید عباس اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق سینے پر لگنے والی گولی مرید کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی. پوسٹ مارٹم کے مطابق 4 فائر آرم انجریز ہیں. دونوں کے چیسٹ ریجن انوالوڈ ہیں، تو اس کی وجہ سے کاز آف ڈیتھ ان کی فائر آرم انجریز آن چیسٹ پر تھی. فوٹیج میں ملزم عاطف کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک اور شخص ہے. اطلاعات ہیں یہ شخص ملزم عاطف زمان کا بھائی عدنان زمان ہے جو فرار ہو چکا ہے. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے
तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। मुरीद अब्बास को आबाई इलाके पीपला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सद्दाम हुसैन से। सद्दाम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुरीद अब्बास खर जिनका ताल्लुक मियांवाली की तहसील था, आज उनका जो है वो जलसे खासी यहाँ पर पिपला लाया है और तकरीबन कोई 10:30 के करीब उनकी जो है नमाज जनाजा पढ़ाई गई है और उनको जो है उनके आबाई कब्रिस्तान जो है चंदी कब्रिस्तान पिपला, उनमें जो है अब तक कुछ देर पहले सुपुर्द खाक कर दिया। जी ठीक है सद्दाम हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। फौरी खबर आपको ये दें कि एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा कानूनी था या गैर कानूनी, पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अभी तक वारदात में इस्तेमाल असलहे का लाइसेंस नहीं मिल सका है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घर पहुंची तो मुलजिम ने खुद को गोली मार ली थी। मजीद जानेंगे, आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि असलहा कानूनी था या गैर कानूनी? जो कि वहां से फरार हुआ और इस हवाले से तहकीकाती कमेटी गुज़िश्ता रोज जो है वो दी गई और ताकि इस वाक़े के ऊपर तमाम तर तहकीकात की जा सके। तहकीकाती टीम अपना काम कर रही है, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम सवाल ये भी और दूसरा तहकीकाती टीम के ऊपर भी सवाल उठता है कि अब तक जो है वो तहकीकात जो है वो इतना सुस्त रवि का शिकार हुए हैं। पुलिस की जानिब से ये बात की गई है, पुलिस ज़राए तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि तहकीकाती कमेटी ने जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अस्पताल का, जाए वक़ुआ का और जो मुलजिम है जिसने खुद को गोली मारी है उसके घर का 2 मरतबा 2 बार जो है वो दौरा किया। लेकिन इस वाक़े में जो असला इस्तेमाल किया गया 30 बोर की पिस्तौल थी, जिससे पहले खिज़र हयात को टारगेट किया गया, उसके बाद ये मुरीद अब्बास पे गोलियां चलाई गई, फिर मुलजिम ने जो है वो फरार होने की कोशिश की थी। तफ्तीशी ज़राए मज़ीद ये बताते हैं कि पुलिस ने जब ये बयान सामने आया मकतूल की एहलिया की जानिब से कि इसमें आतिफ जमान नामी जो शख्स है जिसने कॉल करके पैसे देने के लिए बुलाया था, पुलिस फौरी तौर पर आतिफ जमान की रिहाइशगाह पहुंची, घेराव किया और मुलजिम जो कि घर के अंदर मौजूद था उसने अपने घर से जब देखा कि पुलिस ने उसको घेर लिया है तो उसने फिर खुदकुशी का इक़दाम उठाया और खुद को गोली मारी। पुलिस ने उस वक्त भी जो वो लाश मुंतकिल करने के बाद घर में मजीद छानबीन की कि आया घर से कोई और असला, कोई और हथियार बरामद हो, लेकिन कल कोई हथियार, कोई असला बरामद नहीं हुआ। सिर्फ 30 बोर की पिस्तौल थी जिससे मुलजिम ने मकतूलीन को कत्ल करके खुद को भी गोली मारी थी। और आज भी तफ्तीशी टीम के अरकान जो है वो मुलजिम के घर पहुंचे, वहां पर छानबीन की, लेकिन वहां से मुलजिम के असले का कोई लाइसेंस जो है वो पुलिस को अब तक मौसूल या नहीं मिल सका है। ताहम इस हवाले से इसमें एक और पेशरफ्त ये भी सामने आ रही कि गुज़िश्ता रोज जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ पर ये अदनान नामी शख्स था जिसका नाम आदिल भी बताया जा रहा है, जो कि जो मुलजिम है आतिफ जमान इसका सगा भाई था। और एक और किरदार जो है वो इसमें सामने आने की काफी जो है वो पेशकश की जा रही है। पुलिस ये कहती है कि हुमायूं नामी एक शख्स था जिसने ये मुलजिम की मुलाकात कराई थी मकतूल से कारोबारी के हवाले से, और कई साल से ये कारोबार का सिलसिला चल रहा था और इसके अंदर 300 करोड़ रुपए का ये कारोबार बताया जाता है। काफी मीडिया के और भी ताल्लुक रखने वाले मीडिया से कुछ लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की भी थी। ये टायरों का बिजनेस था, बड़े पैमाने पे किया जा रहा था। इस हवाले से कुछ मजीद पेशरफ्त ये भी सामने आ रही है कि मुलजिम ने तमाम तरह और भी लोगों का पैसा खाने के बाद खुद को जो है वो अपने आप को अगवा करने का एक ड्रामा भी, ढोंग भी रचाया था। मुलजिम जुमे के रोज लापता हो गया था। उसके बाद जो मुलजिम की एहलिया है जो कि रिहाइश पजीर थी एंकर मुरीद अब्बास के फ्लैट की बालाई मंजिल पर, उसकी एहलिया जो वो मुलाकात करती हैं मुरीद अब्बास की एहलिया से और उन्होंने ये भी बताया कि उनके शौहर का कुछ इल्म नहीं है, पता नहीं चल सका। लेकिन उसके बाद ये गुज़िश्ता रोज मुलजिम सामने आया जिसने राब्ता करके ये कहा कि उसको कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया था और बाद में रिहा कर दिया और कुछ रकम उसके पास मौजूद है जो कि वो मुरीद अब्बास को और इन लोगों को जो है वो देना चाहता है। इसी बिना पर उसने मुरीद अब्बास को कॉल करके 50 लाख रुपए देने के लिए बुलाया था। मुलजिम का पूरा मंसूबा तैयार था इन अपराध को कत्ल करने के लिए, जिसमें उसने पहले फायरिंग करके खिज़र हयात को निशाना बनाया, फिर मुरीद अब्बास को कत्ल किया और फरार होने की कोशिश की जो कि नाकाम हुई। जी बहुत शुक्रिया फैजान जली साहब का। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन बड़े मैच का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया।
पहले बैटिंग की 240 रन का टारगेट दिया और फिर भारत की पूरी टीम 221 रन पर ढेर कर दी। कीवीज मुसलसल दूसरी बार मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंच गए, जबकि वर्ल्ड कप से भारत आउट। पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है, जिसमें मुलजिम को पिस्तौल समेत देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात के लिए 5 रुकनी तफ्तीशी टीम भी तश्कील दे दी गई है। हाथ में पिस्तौल लिए दरवाजे से दाखिल होता ये शख्स आतिफ जमान है। मुलजिम ने ऊपर जाकर मुरीद अब्बास को गोलियां मारी, जिसके बाद उसे वापस भागते देखा जा सकता है। आधे घंटे बाद लिफ्ट में मुरीद की अहलिया किसी शख्स के साथ जख्मी शौहर को लेकर बाहर निकलती हैं, मगर मुरीद अब्बास अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीने पर लगने वाली गोली मुरीद के लिए जानलेवा साबित हुई। पोस्टमार्टम के मुताबिक 4 फायर आर्म इंजरीज हैं, दोनों के चेस्ट रीजन इन्वॉल्व हैं, तो उसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ उनकी वो फायर आर्म इंजरीज ऑन चेस्ट बनती है। फुटेज में मुलजिम आतिफ के साथ सफेद कपड़ों में मलबूस एक और शख्स है। इत्तलात हैं ये शख्स मुलजिम आतिफ जमान का भाई अदनान जमान है, जो फरार हो चुका है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। मुरीद अब्बास को आबाई इलाके पीपला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे सद्दाम हुसैन से। सद्दाम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुरीद अब्बास खर जिनका ताल्लुक मियां वाली की तहसील पिपला से था, आज उनका जो है वो जलसे साथी यहाँ पर पिपला लाया है और तकरीबन कोई 10:30 के करीब उनकी जो है नमाज जनाजा पढ़ाई गई है और उनको जो है उनके आबाई कब्रिस्तान जो है चंदी कब्रिस्तान पिपला, उनमें जो है अब तक कुछ देर पहले सुपुर्द खाक कर दिया। जी ठीक है सद्दाम हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। फौरी खबर आपको ये दें कि एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा कानूनी था या गैर कानूनी, पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अभी तक वारदात में इस्तेमाल असलहे का लाइसेंस नहीं मिल सका है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घर पहुंची तो मुलजिम ने खुद को गोली मार ली थी। मजीद जानेंगे, आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि असलहा कानूनी था या गैर कानूनी? आबिद बिल्कुल था, उसका जो मुलजिम था आज के फरार हुआ और इस हवाले से तहकीकाती कमेटी गुज़िश्ता रोज जो है वो दी गई और ताकि इस वाक़े के ऊपर तमाम तर तहकीकात की जा सके। तहकीकाती टीम अपना काम कर रही है, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम सवाल ये भी और दूसरा तहकीकाती टीम के ऊपर भी सवाल उठता है कि अब तक जो है वो तहकीकात जो है वो इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है। पुलिस की जानिब से ये बात की गई है, पुलिस ज़राए तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि तहकीकाती कमेटी ने जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अस्पताल का, जाए वक़ुआ का और जो मुलजिम है जिसने खुद को गोली मारी है उसके घर का 2 मरतबा 2 बार जो है वो दौरा किया। लेकिन इस वाक़े में जो असला इस्तेमाल किया गया 30 बोरों की पिस्तौल थी, जिससे पहले खिज़र हयात को टारगेट किया गया, उसके बाद